नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मीरा साहब पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर एक बुजुर्ग अपनी बहू से इतना परेशान है। बुजुर्ग क्या, पूरा मोहल्ला परेशान है। हम कहते हैं महिलाओं के साथ गलत होता है, पर कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो विक्टिम कार्ड की भी खेलती हैं हर जगह। बिल्कुल। और इस समय यहाँ पर आप देख रहे हैं मीरा साहब पुलिस स्टेशन में है और यहाँ पे नंदपुर के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। डीएसपी साहब निखिल गोगना साहब भी अंदर हैं, एसएचओ साहब भी अंदर है। पर अगर इतने लोग एकत्रित हुए हैं तो डीएसपी साहब को, अगर आलाधिकारी एसडीपीओ आरसपुरा है, उन्हें आना चाहिए, इन लोगों से बात सुननी चाहिए। आखिर क्यों परेशान है इतने इस समय में, इस रात के समय में ये बुजुर्ग और इनके साथ सारे स्थानीय लोग क्यों एकत्रित है? हर बार महिला सही नहीं होती, कई बार पुरुष भी विक्टिम होते हैं। ये इस बात का सबूत है। देखिए कितने लोग यहाँ पर आए हैं। ये अंकल जी जो खड़े हैं, इनकी बहू जो है, इन्हें अपने बेटे और बहू को फारगती दी है। फारगती का मतलब आप समझते हैं कि कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन पेपर में भी पब्लिश किया जाता है। उसके बाद भी बहू बार बार आती है और ये धमकी देती है, जो महिला अक्सर ऐसी महिलाएं करती हैं कि मैं कपड़े फाड़ दूंगी। उसके बाद पुलिस स्टेशन में आना, इन्हें परेशान करना, हरास करना। चलिए इन्हें से जानते हैं। और इस समय निशा जी भी हमारे साथ है, यहाँ के स्थानीय लोग भी। अंकल जी पूरी गल दसो, की हुई दी गल पूरी दसो भी। मैडम उत्ते कि ना रोज आंदी, पता नहीं सारा दिन कित्थे घूमती रहंदी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗਤੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਵੇ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਗੇੜੇ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਨਾ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਨਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਏ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਮਾਰ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਨਾ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਨਾ ਮਾਰਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਏਂਗੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ। ਪਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਸਾਨੀ ਆ ਯਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੁੰਮਣ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਏ, ਦੌੜ ਗਈ ਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਏ ਤਾਲੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਦਾ ਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਣੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਏ ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ हिस्सा नहीं देता थे। मैं देखिए जनाब, कलयुगी बहू ये जरूर हम कहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं घटना हुई। कई बार हमने आपके सामने ऐसी घटना आई जो बेकसूर सास ससुर होते उन्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ती है। तो खुद सोचिए जब ऐसी बहू हो, कह रही मैं कपड़े फाड़ दूंगी। आपको पता ही महिलाओं की सुनवाई ज़्यादा होती है, इसीलिए महिलाएं उसका नाजायज फ़ायदा भी उठाती हैं। चलिए इस समय हमारे साथ शशि जी हैं जो सरपंच हैं। शशि जी पूरा
आपको रमेश जी आपसे पूछेंगे, ये पूरा मामला आपको पता, आप ही के क्षेत्र में आता है, आपने समझाने का प्रयास किया, आपकी इनकी बहू से बात हुई, आपकी इनकी बेटे से बात हुई, क्या बताइए पूरी बात? देखिए, आज से कोई 15 दिन पहले हमारी जो बात हुई थी, जो मेरी नाली में आई, तो मैंने जो भी मेरी पंचायत की क्रीम थी और साथ में जो उस मोहल्ले के जो मोलजी इंसान थे उन सबको मैं लेके उनके घर में गए, उनकी बात साथ सुनी जो भी थी। उसके बाद उस लेडी ने बोला कि जो भी बात होगी अब कोर्ट में होगी। उन्होंने हमारा बिल्कुल भी सत्कार नहीं किया। हम आराम से बैठे और उठ के वहाँ से चले आए इनके अपना। और उसके बाद परसों की बात है, परसों यानी कि मेरी नाली में बात आई कि ऐसा ऐसा कोई इशू है कि इनकी लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा है, ऐसा इशू है। तो फिर कल मैंने वो मोहल्ले वाले भी मेरे पास आए और कल हम पूरा दिन मीरा साहब में इधर बैठे रहे। हमारे SHO साहब जो थे उनको कोई मीटिंग थी, वो गए थे कहीं कोर्ट गए थे, कहाँ गए थे ये हमें पता नहीं है कहाँ पे थे, लेकिन वो आए थे शाम को 3 सवा 3 बजे। उनसे हमारी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाओ, यानी कि हम आए, उनसे बैठ के बात हुई। उन्होंने बोला कि हम सुबह आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई करिए, जो भी होगी देखते हैं क्या यानी समस्या क्या है। लेकिन आज पूरा दिन पुलिस का कोई भी बंदा उस जगह पे नहीं गया। लेकिन अभी मुझे कॉल आई कि ऐसे की बात हुई है। मैं जा रहा था अभी घर, मैंने मेरी दुकान भी इधर मैंने बंद करके जा रहा था। मैंने DSP साहब भी देखे इधर, SHO साहब दोनों की गाड़ी देखी। तो मैं गया अंदर, SHO साहब से मिल के आया हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आज हम बिजी थे कि हम जा नहीं पाए इनकी अपना, लेकिन हम कल क्या करेंगे, कल उसके ऊपर जो भी है कार्रवाई करेंगे। जो आज मेरी उनके साथ अभी यानी भूपिंदर जी से अभी बात हुई है 7:30 बजे। और अपना यानी कि DSP साहब इधर ही बैठे थे, उनसे बात हुई है इनकी अपना करके। उन्होंने बोला कल इनकी अपना हम इसको देखते हैं इनकी अपना सुबह। लेकिन अभी मैं घर भी नहीं, जहाँ से घर भी नहीं पहुँचा तो आगे देखा शोर पड़ा हुआ, मेरा पूरा समाज इकट्ठा हुआ। लेकिन मैं उस समाज उस नाते मैं यानी कि यहाँ पे अभी आया हूँ। अभी जो बात है DSP साहब अंदर बैठे हैं, SHO बैठे हैं, जो भी है करते हैं बात इनकी। जो भी महिला का बहू ही इनके अंदर है, अब वो अभी अंदर नहीं है। उसके बाद हाँ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये बातें होने के बाद जैसे बात इनको फोन जिस नंबर से गया, मैंने इनसे उनका नंबर लिया है, भाई किसने फोन किया, मैंने उस नंबर से उनको कॉल किया है। उन्होंने बोला हाँ भाई वो इधर आई हुई है, वो आपको बुला रही है इधर। उसके बाद मैंने यानी कि जो 2 मिनट के बाद मुझे दोबारा रिपीट कॉल आ रही है, वो चली गई है यहाँ से। वो गई कहाँ पे इनके, उनको जमीन खा गई या आसमान खा गया ये चीज मैं जो बिल्कुल ओपन करना चाहता हूँ, उसको जमीन खा गई या आसमान खा गया। एक इंसान पुलिस कंप्लेन करवाने आता है, दूसरी पार्टी ने है तब तक वो जाता थोड़ी ना। हाँ गया, लेकिन किस चीज का मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब SDO साहब भी अंदर बैठे हैं, SHO साहब भी हैं, सबसे इनसे बात करके मेरा पूरा समाज है, बात ये लोग करेंगे, मैं तो उनके पीछे खड़ा हूँ, बाकी जो भी है वो करते हैं। यानी आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उस एरिया के, आपकी बात नहीं उस लेडी ने मानी, यानी वो किसकी मानेगी बात? लेडी ने, देखो लेडी ने तो बिल्कुल बात मानी। उसने बोला जो मेरा कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में केस जो करे, कोर्ट जो डिसाइड करेगा मैं वैसा करूंगी। उसने मेरे जितने भी उस मोहल्ले के यानी कि सियाने जो बुजुर्ग आदमी थे उनको उन्होंने बेइज्जत करके घर से निकाला इनके अपने। निशा जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही विडम्बना की बात है। कल भी आपने एक कवरेज की जिसमें एक बुजुर्ग महिला को निकाल दिया गया था, उसके बाद उनकी सेटलमेंट हुई। ये भी एक बुजुर्ग है ना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। मतलब ये कैसे पेरेंट्स हैं जिनको दर दर खज्जल होना पड़ रहा है इंसाफ के लिए, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी। और रही बात इनकी एप्लीकेशन की, 1 साल पहले इसी पुलिस स्टेशन में इनका मसला आया था, आया है ना अंकल जी? मैं इनके साथ आई थी, मोहल्ले के लोग इनके साथ आए थे। उस वक्त भी वो औरत जो है वो दोषी पाई गई थी। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगी, मैं भी एक औरत हूँ। जो भी चीज़ें हैं पर्दे में, चलो जो भी हैं, मैं ओपनली यहाँ पे नहीं बोलूँगी। पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं, जब कोर्ट नहीं उनको कुछ कह रहा तो हम क्या कहेंगे। मैं ये बात कहना चाहूँगी, उस वक्त हमने इनको बोला कि अंकल आप ही चुप रहिए, बिल्कुल है ना। उस वक्त भी उसने ये बोला था कि मैं औरत हूँ, कपड़े फाड़ के कुछ भी कर सकती हूँ। तब भी ये डर के बेचारे, चलो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया या कुछ भी किया। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्या 2 वक्त की रोटी नहीं है इनके लिए? जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया उनको, क्या 2 वक्त की रोटी नहीं है इनके पास? वो भी छोड़िए, अगर लीगली बात करें, अगर जब उनका मेंटेनेंस का केस चल रहा है खर्चे का 120 CRPC का, तो फिर ये हल्ला क्यों? फिर पुलिस की इंटरफेरेंस क्यों? सब जुडिशियल तो फिर क्यों? हाँ, जब मसला सब जुडाइज है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, फैमिली कोर्ट में, फिर इनको इतनी प्रताड़ना पुलिस द्वारा क्यों? 3 दिन पहले ये रोते हैं मेरे पास आके कि निशा जी ऐसे ऐसे मसला है। मैंने एप्लीकेशन दी, SDPO RS को दी एप्लीकेशन, वो ऑन रिकॉर्ड है, इनके फ़ोन में भी है। मैंने कहा इनका मौका नक्शा इनका है, मकान इनका है, वाइफ इनकी नहीं है। और
एक चीज कहना चाहूंगी कि मोहल्ले वाले हों तो इन जैसे हों। 2 वक्त की रोटी 2 वक्त की सही है, सही है। मोहल्ले वाले दे रहे हैं इनको। मैं पूछती हूँ, मांग मांग के रोटी खाता हूँ, कभी किसी के पास जाता हूँ, कभी किसी के पास। सुनिए सुनिए रश्मि जी सुनिए, करते हैं ये। जब ये सुनिए, मेरे भी ये पिताजी जैसे हैं। मैं जब इनसे गहने भी नहीं एक तोड़ के मिनट, ले गई है ये सारा कुछ। जब मैं इनसे पूछती हूँ ना कि अंकल आपने खाना खाया, जब मेरे पास घर में आते हैं अपना मसला सुनाने से कुछ भी, मैं इनको सबसे पहले पूछती हूँ आपने चाय पी अंकल? ये कहते हैं हाँ मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे को खाना देते हैं। भैया सारे मोहल्ले वाले यहाँ पर, नहीं तो आजकल इस मसले में कोई नहीं आता। अगर ये गलत होते, सरपंच साहब यहाँ पर बिल्कुल पंच हमारे साथ हैं, उसमें वो जो बंदे हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं वो साथ हैं। मुझे एक चीज़ कहनी है रश्मि जी, 3 दिन पहले हमने एक एप्लीकेशन दी कि उसने ताला तोड़ा, आके बदतमीजी की है, इनको मारा पिटा है। उस एप्लीकेशन का क्या बना? पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एसडीपीओ निखिल गोगना जी को बोलूंगी कि आप हमेशा बाइस चलते हो कुछ मसलों में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके घर में भी माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की सुनिए, इन मसलों को लाइटली मत लीजिए। अगर कोई भी जाता उम्मीद लेकर जाता, उम्मीद लेके जाता। कल भी जैसा बुजुर्ग गई तो उन्होंने एक डायलॉग मार दिया, वो बागवान फिल्म का, वो डायलॉग बाजी ज्यादा करते हैं। और मैं इनके साथ गई हूँ। मैं अंकल जी कह दीजिए, मीडिया वाले इनके खिलाफ चलते हैं, ये सामने साक्ष्य है आपके। हम कोई अपने से तो बना नहीं रहे हैं। एसएचओ साहब बोलते हैं कि आप इविक्शन ऑर्डर लाओ ना, अगर आपको कोई उससे प्रॉब्लम, अगर आके वो आपको मारती है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपके घर में कोई, जब किसी के घर में कोई घुस के मारेगा, ट्रेसपास करेगा, उस पर एफआईआर बनती है, तो फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं? औरत है तो कपड़े फाड़ेगी। समाज में औरतें अच्छे काम भी कर रही हैं, औरतें आज कहाँ पहुँच रही हैं। और मैं औरतों को भी जो गलत है उनको चेतावनी देना चाहूँगी कि ये जो ड्रामेबाजी है ये बंद कर दो। अगर आप कपड़े फाड़ने की धमकियाँ देते हो तो मर्दों की आप सोचते, इतनी कहाँ से उन्हें हिम्मत आ गई है? एक औरत होने के नाते कौन है पीछे उनके जो यानी उन्हें गाइड कर रहा है? सब पता है, नाम नहीं बोलेंगे वो, ये डर के, क्योंकि पिछली बार भी इन पे हमला हुआ था और पुलिस स्टेशन में बोले थे। पूरे मोहल्ले वालों को पता है उसके पीछे कौन है कौन नहीं। ये अंकल जी बताएंगे कौन है। अंकल जी बता दो ना कौन है, बता दो सच। आप पे हमला हुआ था? देखिए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, शर्म से मरता है जो देखेगा तो जीने का दिल नहीं करता। अपनी आंखों से देखा मैंने, इन्होंने अंदर कि ना हमारे ही घर में ते एक लड़का, वो उसका कि ना नाम है कि ना राहुल, तो एक आपके घर में आता जाता है? नहीं आता जाता, ये जाती है उसके घर में, वो उसको भगा के ले दे। मैंने अपनी आंखों से जब देखा, मैंने अपने बच्चे को देखा, मैंने कहा ये क्या कि ना तू इधर सो रहा है, वो उसके साथ सो रहा है, तू क्या कर रहा है? वो कहता है यार खापना, सुबह सुबह खापना पाओ। इन्होंने, मैं इसके बात करने लगा, वो भाग गया, वो कि ना वहाँ से भाग गया, तो उन्होंने आके इसको मारा कि ना मेरे बेटे को मारा। किसी ने, जो उस लड़के ने? हाँ लड़के ने। इतनी हिम्मत है कि आपके घर में आके मारा? हाँ जी, घर में आकर मारा। तो उसने मुझे फोन किया, भाई मुझे मारा है। मैं आया तो वो कि ना बेहोश पड़ा। कंप्लेन नहीं करवाई पुलिस स्टेशन? मैंने कहा था चलो कंप्लेंट कराओ। कैसा नालायक बेटा है, खुद भी मार खा रहा और आपको भी करवा रहा मार। वो गया, कसूर तो आपके बेटे का ना? हाँ जी, तो वो कह रहा था मुझे डर लगता है कि ना वहाँ पे थाने में डर लगता है। डर लगता है? चोर है क्या डर लगता है? बाप को मार पड़ रही है, कैसा बेटा, इसलिए पाल पोस के बड़ा किया गया। बीवी तो उसकी है, आपके बेटे में इतनी हिम्मत नहीं अपने बाप को, आपकी हिम्मत बन सके अपने बाप को कहीं सुरक्षित कर सके? तो जब इन्होंने मेरे बेटे को घेर के जब मारा ना, नाल इसकी बीवी थी, 3 एक और औरतें थी, एक वो राहुल था इसके साथ। उसको मार के जब गए तो वो घर छोड़ के भाग गया यहाँ पे। मैंने फिर हार गति दे, ये कहती है मुझे हिस्सा दे। मुंडा कूदा कहाँ रहता, कहाँ है वो जिसका नाम ले रहे हो लड़के? हमारे 6-7 घर छोड़ के आगे रहता है। करता क्या वो ऐसे ही घूमता रहता है। वो भी, उसका नाम है कि ना राहुल है, उसके बाप का नाम प्रेम है। अच्छा, आपको उनसे डर है क्या? हाँ डर लगता है, वो कि ना बदमाश आदमी है, ये हमें मारते हैं कि ना, जहाँ जाते धमकियाँ देते हैं हमें। किस बात की धमकियाँ देते हैं आपको? यही जाकर किसी ने कोई बात की या कोई आपने जो कुछ कहा इसको औरत को, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे तुमको। तो आप बोलते नहीं है कि ना हम। एक चीज कहना चाहूंगी कि इनकी एप्लीकेशन का कुछ नहीं बना 3 दिन से। ये वो महिला आई तो ये सरपंच साहब हमारे 3 दिन से इनके साथ आ रहे हैं, कभी कुछ बहाने लगा रहे हैं, कभी कुछ। चलो ठीक है, आपने कार्रवाई नहीं की, उसकी 1 मिनट में कार्रवाई हो गई। मतलब जिप्सी तक इनको पकड़ने लगी। इन्होंने कौन सा क्राइम किया? जिप्सी आई थी आपके पास पुलिस की? ये मुंशी है ना जो थाने का था, मैंने कहा जल्दी आ मेरे पास आ, मैं जिप्सी भेज रहा हूँ आपको, उसमें बैठ के आ जा। मैं कहा मेरे को कोई साधन नहीं है चलने का, मैं पैदल आ जाऊँगा, ज़रा टाइम लगेगा। कहता मैं उधर जिप्सी भेज रहा हूँ तो आपके पास, कुछ पुलिस वाले भेज रहे हैं, उसमें बैठ के आ जा। मैंने फिर मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया,
तो फोन किया सारी सबसे बड़ी मैडम बात को ये किया, तो है फिर मसला सब जुड़ाई से कोर्ट में, कोर्ट की परमिशन मिलती है उसको तो आके रहे, बिल्कुल ठीक है ना, यही बात खत्म करूंगी। मैंने मैडम भी फारगती दी है अंकल जहाँ जी, की चाहे आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ इनकी हैं। जान को खतरा है। हम आपके साथ हैं। आज मुझे के बाद कहीं भी कोई मार भी सकती आपकी है कि नहीं? तरफ आंख नहीं उठाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, सारे एक अपना परिवार आपके, ये सरपंच साहब है, सारे हैं। अगर आप गलत होते तो कोई आपके साथ खड़ा ना लक्ष्मी जी होता। मोहल्ले वालों से सुनिए, बहुत पीछे बहुत प्यार सर, से आप आपकी इसी मोहल्ले के मेहरबानी सर, आप इसी मोहल्ले के सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम गोपाल जी। गोपाल जी, क्या हो रहा है इनके घर में? किसी का डर नहीं, बेचारे एक बुजुर्ग परेशान है, आप लोग इनके साथ आए बुजुर्ग हैं। खुद परेशान है साहब। जो इसका बेटा है ना, पहले तो वो गलत था, बिल्कुल, वो इनके साथ मिला हुआ था। तभी हमने कहा जब गलत जब मार जब क्यों कर उसके रही है? बाद उसको इधर से निकाला तो जो मारा उनको, वो मेरे उस दिन मारा इन्हें रात को। दूसरे दिन जो है ये बाप इसका मेरे को फ़ोन कर रहा है, मारा होगा। मैं, मेरे को तो पता नहीं है, मेरे साथ तो मुलाकात ही नहीं है इनकी, बात ही नहीं करता। मेरा ना इसका बेटा था ना इसकी नूंह, मेरा पड़ोसी है लेकिन बात नहीं करते हमारे से। तो इन्हें ये उन कल परसों 2-4 दिन का आया हुआ है, ये इसी में आपको परेशान कर रहे हो। अभी जो है आज जो हुआ ये मेरे को पता नहीं, इन्होंने बाद में बोला कि मैंने ताले लगाए हुए हैं। तो ये ऐसे मेरे को पुलिस में फ़ोन किया, चलो आप सभी इकट्ठे होकर चलो, तो इसलिए हम भी साथ में आए हैं, इनके साथ पड़ोसी है मेरे। ये कोई एक साहिल शर्मा बोल रहे हैं चोर मीडिया, इसकी जगह तुम्हारा खुद का बाप होता तो तुम ऐसे ही लिखते क्या? ये चोर मीडिया जो आधी रात को आके उनकी कवरेज कर रही नहीं है, बताइए साहिल शर्मा, इस वक्त कोई भी अभद्र अगर आपने कमेंट किया ना तो पुलिस स्टेशन है, भले ये जो coverage हम कर हैं, रहे हम हैं, खुद यही- सुनवाई करेंगे, हमें बताएंगे आपको क्या होता है चोर मीडिया। ये आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, आप ये सोचिए अगर इनकी जगह आपका खुद का पिता होता फिर भी आप कहते हैं चोर मीडिया। ये बताइए जरा, ये भी किसी के पिता, हम कहते हैं हमारे पिता के समान है, अगर उनके साथ गलत हो कल किसी के साथ भी गलत हो सकता है। शायद लगता है आप उनके नहीं, आप लगता है जिनके खिलाफ हम कर रहे हैं उनकी कोई रिश्तेदारी में आप, तो हमें निकालने में जो हमें 2 चोर मिनट कहता जी। मेरे साथ आके नहीं, बात नहीं, करे। हमें बोला कि चोर मीडिया है, हम आपकी कवरेज कर रहे हैं। नहीं, हमारे साथ आन के बात करे भी चोर कौन है तो आप कौन नहीं, हो। हमें सीधा करना आता है ऐसे लोगों को, आप चिंता मत कीजिए, हमें पता है क्या करना है। आप देखिए और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या सर? मेरा नाम राजिंदर सिंह है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਇਧਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? मैं एक्स सरपंच हाँ, मैडम साढ़े सरपंच। सर एक बुजुर्ग ना इस तरह हो रहा है, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ सुनवाई ਰਿਹਾ, नहीं ਮੈਂ हो ਸੁਣ रही ਰਿਹਾ देखो। ਸਭ ਸੁਣ ਰਿਹਾ जी जी, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ। देखो ये गलत है सर, कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅगर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ नहीं होने चाहिए सर। सर क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विष्णु दास है, मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ। आज से 10-15 दिन पहले ये बुजुर्ग हमारे पूरे मोहल्ले में घूमे, सबको इकट्ठा किया कि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, आप मेरे घर में आइए, तो मतलब मेरे प्रॉब्लम को सुलझाइए। हम लोग इसके घर में बैठे, हमने सोचा कि चलो इसकी बहू को भी समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा इसका जो है थोड़ा फैसला कर लेते हैं। और उस बच्ची को बुलाया हमने, इनकी बहू को बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसने बोला कि भाई मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती। इतनी क्यों बेलगामी, इतना क्या उनको है? उसने किसी की नहीं बात सुनी, वो बोले कि जो कुछ मैं कहूँ, जिसने जो कुछ कहना है कोर्ट में जाओ, और मैं जो कुछ कहूँगी कोर्ट में कहूँगी, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट में जाइए, ऑनरेबल कोर्ट का सम्मान फिर करते हम- आदेश लाइए। बिल्कुल। फिर हमने सरपंच साहब को बोला कि इसका मायका जहाँ है, ये अपना बड़ियाल काजी है ना, वहाँ है। सरपंच साहब को बोला कि आप इसके मायके में इसके बाप से बात कीजिए कि ये बात है, इससे मोहल्ले वालों को भी परेशानी हो रही है। तो इन्होंने बात के इसके पेरेंट्स से बात किया लड़की से, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। नहीं, उनको भी पता होगा तभी हाँ, वो आएंगे। वो भी नहीं, इसका पीछा नहीं करते हैं वो लोग जो है। फिर हम लोग क्या करना था, हम चले गए। फिर इन्होंने जो है कोई आगे की कार्रवाई की होगी, तो फारगती कराई जो भी है। कल हम सब मिल कर के आए थे जहाँ पे एसएसओ साहब से मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि आज के दिन हम जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। आज शाम तक तो मुझे लगता कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर हुआ अब होता तो अचानक थोड़ी इन्होंने अब अचानक मुझे टेलीफोन इनका आया, ऐसा इसका अपना सरपंच साहब का, कि आइए वो वहाँ वो लड़की चल गई है थाने, तो थाने वाले बोल रहे हैं कि बूढ़े को कि आ जाओ।
मैं किस लिए गई है? इन्होंने कंप्लेन कराई तो तब क्यों नहीं बुलाया उस लेडी को? अब वही तो बात है ना। तो अब हम जब इकट्ठे होके आए थे, इन्होंने टेलीफोन किया, कहाँ होते, सरपंच साहब ने बोला कि हम सब आ रहे हैं मिलकर। तो ये यहाँ थाने से आवाज़ गई है, बोला नहीं वो चली गई है। जब वो आई है तो हम सबको जो है ना, ये समय जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये मीरा साहब पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर है। हम ये नहीं कहते पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसे मसलों को गंभीरता से लेना चाहिए। और इस समय आप देख रहे हैं एसडीपीओ आरएसपुरा की गाड़ी भी यहाँ पर है। कोई अगर इनके हैं जो जूनियर है, उनके बोलेंगे जरा एसडीपीओ सर को बुलाइए, जरा बाहर बुलाइए, उनको इतनी जनता इकट्ठी हुई है, उन्हें आश्वासन दीजिए कि हाँ ठीक है, आप आश्वस्त सोच के जाइए, हम आपके साथ हैं। एक बुजुर्ग ही है, भैया जी जरा एसडीपीओ सर को बुलाइए, जरा अंदर है, एसडीपीओ सर को बुलाइए। ये कुंडी क्यों लगाइए? पब्लिक का पुलिस स्टेशन है, खोलिए जरा। नमस्कार सर, नो बुलाओ एसडीपीओ सर, नो गल करनी, लोग आए मिलने से, कोई ऐसी गल नहीं है। चलिए एसडीपीओ सर आए, इनसे बात करें, जो इनका मसला हल करें, क्योंकि वो देखा जाए तो एसडीपीओ आरएसपुरा है, यहाँ पर इनकी एक ड्यूटी है। और अगर भूपिंदर सर की बोले एक बात तो वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम नहीं कहते पुलिस हमारी अच्छा काम नहीं कर रही, पर कई मसलों में जब ढील बरती जाती है तभी इस तरह का गुस्सा देखने को मिलता है। नमस्कार सर, भूपिंदर सर, ये आप अच्छा काम कर रहे, इससे कोई वो दोराहे नहीं है। तो एसडीपीओ सर भी आए हैं, उनको भी बुलाइए जरा, आपके इमीडिएट अफसर इस समय वही है सीनियर। भूपिंदर सर, ये बुजुर्ग है, देखिए बेचारे, देखिए इनकी उम्र देखिए। इनका कहना है कि जब इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, 4 दिन पहले भी आया था मैं आपके पास। इसकी जो नूह है ना, इसकी जो डॉटर इन लॉ, वो अभी आई थी, उसके साथ 2 बच्चे थे। वो कहती है कि इसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, ठीक है, वो रो रही थी। अब इसको बुलाएंगे नहीं, क्या करेंगे? मुझे एक चीज बताइए, जब पहले ही आ रहे हैं, इनकी शादी उन्होंने कंप्लेन भी दी है, बिल्कुल दी ना कंप्लेन, उस पर क्या कार्रवाई हुई ये बताइए आप। ये अच्छे तरीके से बस रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इसके साथ ही रह रही है। जब ये उसको टॉर्चर करेंगे या तंग करेंगे, वो आएगी ना हमारे पास। फिर आपने सुनिए, इससे ज्यादा हम मानते हैं आप उनकी कंप्लेन के ऊपर बुलाया, बाकी आप इनकी जब ये कंप्लेन करते हैं तो इनको उसकी बहू को बुलाया इनके सामने? बिल्कुल उसको बुलाया था अंकल जी, उसको बुलाया था इनको, मेरे सामने नहीं बुलाया, उसको बुलाया था, उस समय से आए नहीं। अब वो आई है कि मुझे मारा है, अब बुलाएंगे ना इसको तो बुलाना पड़ेगा ना। पर ये मसला कैसे ऐसे चलता रहेगा? ये चूहा बिल्ली का खेल कम से कैसे साट आउट होगा सर? बाद में जब करेंगे इसको तरीके से, फिर देख लेंगे। क्योंकि कल को इनको ये कहते हैं मुझे मारा है, ये सरपंच साहब भी हैं, ये कहते हैं इनको आज लाते मारी है। देखिए ना, ये पूरा मोहल्ला इन्हीं के साथ आया। 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, मारने की जो एप्लीकेशन है उसमें नहीं दी है, मारने की नहीं दी है। इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। अंकल उसमें लिखा हुआ है सब कुछ मैडम, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि वो धमकियां देती है, कपड़े फाड़ूंगी, ये है वो। देखिए सर, अगर वो अपने तरीके से कोई एप्लीकेशन देगी, उसके उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर गलत होते पूरा एरिया इनके साथ ना आता। बोलो ना, मोहल्ले वाले वो रहती कहाँ है, इसका पति कहाँ है? क्योंकि जो उसने एप्लीकेशन दी थी, इसलिए वेरीफाई करने के लिए बुलाया था, लड़ाई करने के लिए थोड़ी बुलाया था। ये आते तो वेरीफाई हो जाता, सामने आते तो। अब सर क्या कर रहे हैं? अब हजारों बंदों के सामने वेरीफाई क्यों करते, उसको बुलाते, वेरीफाई करना था ना, और क्या था इसमें ज्यादा? सर अब बुला लीजिए, कोई नहीं, आप अभी ये आए हैं। अब वो चली गई है, जब आएगी फिर बुला लेंगे, इसको भी बुला लेंगे। उसने एप्लीकेशन दी है, उसके तरीके से किस तरह से, मतलब क्योंकि ये ना हो कि बड़ा बवाल वो देखेंगे। अब सामने एप्लीकेशन दिया, फिर सामने क्या बताऊंगा, जो एप्लीकेशन उसी की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखिए सुनवाई दोनों की होनी चाहिए, कर लेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल सर, हम उम्मीद है कि आप करोगे, क्योंकि ये ना कि औरत है तो आके मैडम एक मिनट वो रोए। जी देखिए, बात ऐसे है कि मैं अभी जो इंसिडेंट हुआ है ना, मैं उसके खाली 20 मिनट पहले मैं जनाब से मिलके जा रहा हूँ सर। डीएसपी साहब बैठे थे, आपसे मिलके जैसे ही मैं रास्ते में पहुंचा, आगे इनका क्या हुआ है, और मुझे इमीडिएटली मैंने अपने बच्चों का जो सब्जी था वो भी किसी के हाथ घर भेजा है, वहीं से वापस आ रहा हूं। तो अब आप देखो, ये देखो, यानी कैसे करके इनको शॉर्ट आउट करो, किसी शॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन शॉर्ट आउट तरीका ये नहीं ना, आप 80 बंदे लेके, अगर आपके खिलाफ कंप्लेन है तो 80 बंदे क्या करेंगे? कंप्लेन हटा देंगे सर। नहीं, कंप्लेन के ऊपर पूरा वेरीफाई करेंगे, जो कंप्लेन वेरीफाई होगी। सर प्लीज एक छोटी सी बात बोलूंगा, ठीक है? आप बिजी थे, शेड्यूल बिजी चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्लीज चाहिए था किसी एक बंदे को। इसको बुलाया था, नहीं आते, सुबह बुलाते, काम खत्म हो जाता। सर ये बंदे लेकिन दसना गल बुजुर्ग शरीफ आदमी है, ये बोलता कोई नहीं, जनानी ठीक नहीं है, जरी किस चाहिए
अब उसको हम अगर एप्लीकेशन हमें देगी कार्रवाई के लिए उसके मुंह पे नहीं हम बोलेंगे ना अब क्या हो क्या नहीं, वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के बीच में आ जाएगा, वो कंप्लीट करेंगे। नहीं आंदियां इस करके आईयां कि खामखा इन्हां नूं हरासमेंट ना किया जाए कि भाई उदी एप्लीकेशन तुसीं हरासमेंट ना करो। खामखा हरासमेंट नहीं होएगा। हाँ, अगर कोई गड़बड़ है तो शरीफ आदमी है साडा उत्थे। यही उम्मीद करते हैं भविंदर सर आप क्योंकि इनका कहना है कि वो घर पर नहीं रहती है, जिस वजह से आज इन्हें यहाँ पर आया, जब आती है तो मार पिटाई करती है, कल को कोई बड़ा पूरे महल्ले ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ महल्ले ਦਾ स्टेटमेंट होने चाहिए। नहीं सरपंच साहब जाके आते बिल्कुल, क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेटिव ही काफी हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव स्थानीय लोग हैं, कोई बाहर का झूठ थोड़ी बोलेंगे ये लोग। अपने साहब नाल ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ आपसे चाहिए। उम्मीद है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। देखिए हमें भी देखिए कोई शौक नहीं था घर से उठ के यहाँ पर आने का इस समय। ਕੋਈ ਫਤੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਡੈਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਇਨਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਵਾਸਾ ਇਨਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ही होएगा, जो भी होगा मंडे नहीं होएगा। ससुर को क्यों कर रहे हैं, उसके पति से बात करो ना, ससुर को क्यों कर रहे हैं? इधर आइए आगे। वो कोई गल नहीं, यानी कि अपना कल कहता ना ऐतवार है, ऐत तो सोमवार इस फैसले पर नहीं पेगा, कल ऐतवार ही जो होएगा, नहीं होगा तो परसों देखेंगे मंडे की करना इनके। वो पति पत्नी का मसला है, बिल्कुल बीच में उनका इनको बीच में निकाल। अगर ये उनको मारते हैं तो क्यों वो कहती है घर में आके कि मुझे मारो। जब डिसेंटेंस डी है इनके पास, फारगती है इनके पास, तो फिर क्यों जाती है कि मुझे मारो। जब तक कोर्ट में सब जुड़े इस केस है तो कोई नहीं, जब तक फैसला आएगा फिर आप चले जाओ। 125 सीआरपीसी का केस लगा हुआ है और यही एसएचओ के पास उसके सम्मन आए हुए लड़के के, तो वो उनका घर का मसला अगर घरेलू मसला वाइफ मानते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ इनको प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए पूरा मोहल्ला है तो कोई झूठ थोड़ी पूरा मोहल्ला बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आज इनके साथ कल किसी और के साथ ऐसा होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि अगर महिला होगी तो उसकी सुनवाई होगी, मतलब एक मेल होगा तो बड़ी एक विडंबना की बात। ये बोलियो इसी करो पति की बनाओ, पति देखो मैं भी बात सुनो, मैं आज मीडिया के सामने ये बोलना चाहता हूँ, जो भी चाहे कोई गलत है चाहे सही है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट ठहरो, एक मिनट नहीं एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मैम एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट प्लीज। कोई नहीं जा रहे हैं सर, ये बाहर खड़े सुनो मेरी बात सुनो मैम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कोई भी बंदा ये पुलिस स्टेशन किसी के बाप का नहीं है, पुलिस स्टेशन हमारा है, पुलिस स्टेशन हमारा है। ये मत को सोचे कि मेरे बाप का कोई पुलिस स्टेशन है। ये मैं आपको खुले हम चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करूंगा उन लोगों को जिन लोगों के सब कोई यानी कि अपना दिमाग में कोई गलत फतूर है ना, वो मैं निकालना मैं जानता हूँ। जनता से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में इनके अपना करके। जनता है तो डिपार्टमेंट है, अगर जनता नहीं होगी तो डिपार्टमेंट नहीं होगा। ये मैं कहता हूँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये आपको जो बोल रहे हैं ना एसएचओ साहब कि 80 बंदे लेके आप आए हो तो वेरिफिकेशन अकेले में होती है, अकेले में टॉर्चर होते हैं ये लोग। अगर 3 दिन से इनकी कार्रवाई नहीं ना हुई अकेले में, अभी क्यों नहीं वेरिफिकेशन होती कि ये गलत है कि नहीं है। अगर ये गलत होते इतने लोग क्यों आते हैं इनके साथ, और ये संख्या इतनी है ना, कल पूरा गांव पूरी पंचायत बाहर निकलेगी। सरपंच साहब जो है हमारे मोजस बंदे जो हैं ये साथ में होंगे। सरपंच जी आप इनके साथ हैं, आप तो जहाँ भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आप हमें भी बुला सकते हैं। फिलहाल ये हमने आपको पूरे विजुअल बताए समय, और देख लीजिए सारा ये जनता डिसाइड करेगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिएगा किसका क्या एटीट्यूड है। हमें जनता जहाँ बुलाएगी भाई हम जाएंगे, जहाँ पर भी जनता को जरूरत होगी, चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी के खिलाफ हो, या किसी के घरेलू मामला, जब जहाँ भी हमें जनता बुलाएगी किसी को हमारी जरूरत होगी तो हम जरूर जाएंगे। फिलहाल हमने आपको ये विजुअल बताए, एक बुजुर्ग है जिनके साथ पूरा गांव यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर है, मीरा साहब पुलिस स्टेशन के, और उन्होंने कहा बार बार इनकी बहू जो प्रताड़ित कर रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने फारगती भी दी है, और कोर्ट जो है इनके बेटे का जो केस है, बेटे बहू का, वो सब जुडाइस है, यानी कि कोर्ट में चल रहा। हम उस केस में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना उसके लिए बात करेंगे, उनका आपसी मसला। पर ये बुजुर्ग क्यों भुगतान करे, किस चीज का भुगतान करे? मार पिटाई भी हो रही है, और वो इनकी बहू जो कह रही है कि मैं कपड़े फाड़ दूंगी और आपको फंसा दूंगी केस में, ऐसा अक्सर होता भी है। अगर इनकी बहू भी देख रही है ना, अगर आपके पास साक्ष्य है आप भी आइए, हमारे मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखिएगा, अपनी सच्चाई को रखिए, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं सही है या गलत है। और देखिए आपके सामने हमने एसडीपीओ आरसपुरा भी हैं, जिनका एक दायित्व बनता हम आए हैं, पर वो नहीं आए हैं क्योंकि उनको पता हमारे सवाल तीखे होंगे, उनके पास जवाब ही नहीं होगा।
उनको डायलॉग से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर कहते जी पुलिस के खिलाफ बोलते। साहब की बात नहीं हम कर रहे हैं, कई ऐसे ऑफिसर भी हैं, आबिद जी जैसे देखो, जो एसएचओ बिश्ना है, जहीर मनाज जी जैसे देखो, मोहन शर्मा डीएसपी उनकी तरफ देखो, एसएसपी सांबा देखो, एसपी जो अजय शर्मा जी हैं साउथ जोन के देखो, और भी अन्य अधिकारी हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा गौरव है। पर देखिए सर का एटीट्यूड, अगर इनके बाहर जनता आई है, आप एसडीपी हो, सब डिवीजन के हैं यहाँ पर, तो आपको आना चाहिए। आपने अपने जूनियर को भेज दिया, यहाँ आप खुद नहीं आए, क्योंकि आपको पता हम सवाल तीखे करेंगे, आपके पास जवाब ही नहीं होगा। बुलाया भी हमने गेट के पास जाकर, पर वहाँ से अंदर से कहा जा रहा है गेट को बंद कर दीजिएगा, ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी समय जिन्होंने कहा ना आदेश दिया, हम उनको वार्निंग कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, पर्सनल घर नहीं है आपका जहाँ पर आप लाख और कुंडियाँ लगाएंगे। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए पुलिस स्टेशन, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोई भी पीछे होगा, किसी के भी होगा, हम उस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे और ना ही हम डरने वाले हैं। जो करेंगे ठोक ताल के करेंगे और सच को सामने लाएंगे। फिलहाल जनता अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट रखिएगा कि इस बुजुर्ग के साथ आज गलत हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, तो उसी वजह से जो सही में विक्टिम महिलाएं होती हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू तक वीडियो पहुंचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।